42 नंबर डिस्कस कर रहा हूं। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली bullet of mass 20 gram traveling horizontally with speed 500 meter per second 500 meter per second passes through a wooden block of mass 10 kg. This is mass 10 kg. Initially at rest on a level surface. The bullet emerges with a speed 100 meter per second. The bullet emerges with a speed 100 meter per second and the block slides 20 centimeter on the surface before coming to rest. The block slides 20 centimeter on the surface before coming to rest. Find the coefficient of friction between the block and the surface. देखो, first we try to understand the question. देखो, क्या है? If the bullet will strike the block, क्या होगा strike करने? क्या लिखा है? The bullet strikes the block and it comes out from the other side. So it has penetrated the block and it has emerged from the other side, and it is emerging with speed 100 meter per second. So if you see, initial is 500 and final is 100. We can apply the conservation of linear momentum. During collision we will not have any external force. So whatever is decrease in its momentum, that momentum has gone to this object. ठीक है? And because of that momentum it has got some velocity. And because of its velocity, it will move on this rough surface. And it stops after traveling a distance 20 centimeter. So you have to find what is mu now. ठीक है? तो देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे हम लोग। इनिशियल फर्स्ट वी विल राइट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो क्या इनिशियल मोमेंटम इज व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? कितना है इनिशियल मोमेंटम? m इंटू मान लो इसको u1 रखो, ठीक है, u1, ठीक है। दूसरे वाले का क्या मोमेंटम है? 0, सीधे 0 लिख देते हैं। एंड फाइनल मोमेंटम, इसका वेलोसिटी नहीं पता है हमें, इसको रखते हैं हम लोग v2 और इसका रखते हैं v1। क्या लिखेंगे? m v1 प्लस कैपिटल M v2। कैन वी राइट लाइक दिस? इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। ओके, नाउ m is how much? 20 gram. तो kg 20 by 1000 लिख देते हैं, 20 by 1000 and u1 is 500. Now m is 1 by 20, 20 by 1000 and v1 is 100 and m is 10 and v2 we will get from there. We can find v2 from this expression. ठीक है? So if we solve it, what do we get? 10 equal to 2 plus 10 v2. So v2 is how much? 10 minus 2 by 10 means 0.8 meter per second. So the block will have how much velocity after the bullet strikes it? 0.8 meter per second. ठीक है? तो 0.8 मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा है। अब कितने दूर में रुक गया हम लोग को मालूम है। तो व्हाट वी हैव इनिशियल वेलोसिटी ना, तो अलग से लिख रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0.8 मीटर। हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट? Displacement is 0.2 meter because 20 centimeter is 0.2 meter. Now can we find acceleration? क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? v square minus u square equal to 2as. v is how much? v
0 because finally object stops. U कितना हो गया 0.8. 2 A is how much? A निकालना है हम लोग को 0.2. तो A कितना हो जाएगा 0.8 divided by 2 into 0.2. ठीक है 4 हो गया 2 कितना आ गया 1.6 meter per second square. If this is the acceleration, then what will be the force? There is only one force, friction is acting. So friction is m into capital M into A. ठीक है and what will be friction coefficient? Friction coefficient is how much? Normal friction by normal, यही होता है ना. And on horizontal surface normal is mg and this is ma. ठीक है we only deal with magnitude part, so हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, अच्छा रहेगा. 1.6 by this is answer. ठीक है we will get 0.16. समझ में आया? ठीक है तो दिस इज द वे वी हैव टू सॉल्व इट. सो देखो collision of object from a fixed surface. ठीक है collision of an object from a fixed surface. एक fixed surface से collision, ठीक है wall और ground. Now हम लोग देखेंगे ऑब्लिक एंगल पर. ठीक है एट ऑब्लिक एंगल. ठीक है देखो ध्यान देना इसमें कैसे होगा. देखो सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट मूविंग लाइक दिस, ऐसे आ रहा है. ठीक है ऐसे आएगा and this is the normal. ठीक है when the object strikes with the wall, जो फोर्स लगता है ना नॉर्मल, वो इस डायरेक्शन में लगता है, इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता. ठीक है ऑल्दो वेरी स्मॉल फोर्स लगता है बट वो नेग्लिजिबल होता है. ठीक है देखो एक्चुअल एक सिचुएशन सोचो, अगर ग्राउंड पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल ली, एक कोई भी ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है मतलब पेन ही लिए. ठीक है अगर हम इसको नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करें इस वॉल के अगेंस्ट और ग्राउंड के अगेंस्ट, तो बहुत लार्ज फोर्स डेवलप करे, कितना भी फोर्स लगाए हम लोग क्या इसको अंदर पुश करके घुसा सकते हैं? नहीं. ठीक है दैट विल बी वेरी लार्ज फोर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सरफेस. ठीक है सो दैट लार्ज फोर्स इज आल्सो प्रोड्यूस्ड व्हाइल कोलिजन. ठीक है एंड बिकॉज ऑफ दैट लार्ज फोर्स वी गेट चेंज इन मोमेंटम. ठीक है अब दूसरा देखो, इफ वी अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ऐसे अप्लाई करते हैं मान लो ऐसे. ठीक है सो वी विल हैव टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, और दूसरा इस सरफेस के पैरेलल. ठीक है तो जो पैरेलल वाला फोर्स होता है वो उसकी वजह से उसको रोकने वाला कौन है? फ्रिक्शन है. ठीक है देयर विल बी सम फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड, so that will try to stop the even parallel movement, but that friction is very small if you compare it with the normal force. नॉर्मल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तुम्हारा मिलियंस ऑफ न्यूटन्स में जाएगा. मिलियंस ऑफ न्यूटन मतलब वो लाख से ऊपर ही रहेगा. इतना हार्ड सरफेस में किसी ऑब्जेक्ट को तुम अंदर दबा नहीं सकते हो. ठीक है बट फ्रिक्शन में अगर बात किया जाए सो हार्डली हाउ मच फोर्स यू हैव टू अप्लाई, 1 न्यूटन 2 न्यूटन, उससे ज़्यादा अप्लाई करोगे ना तो छोटा सा ऑब्जेक्ट जो है तुरंत मूव करने लगेगा. सो इफ यू लुक एट दिस टू फोर्सेस, व्हेन द ऑब्जेक्ट कोलाइड्स विद द ग्राउंड, there are two kinds of forces produced. One is normal from the ground and second is friction. But friction is sufficiently small as compared to normal. क्या आ रहा तुम लोग का? समझ में आ रहा है? लास्ट में वहां पर समझ में आ रहा है अभिषेक? There are two forces.
कौन कौन सा फोर्स है? What are the two forces? Normal and friction. Normal is very large as compared to friction. So if you consider the collision time is generally very small, that is in milliseconds, ठीक है, or even less than that. So in milliseconds, if you take 1 Newton, 2 Newton friction force, that is not going to change anything, ठीक है, that change due to friction will be negligible, and whatever change will be there, that will be only due to normal force, ठीक है, क्योंकि normal काफी large, ठीक है. तो क्या होगा बताओ, ये ऑब्जेक्ट जब रिटर्न होगा, ठीक है, तो इस पर नॉर्मल की वजह से इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है, बट इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अनचेंज रहेगी, ठीक है. तो हम लोग इस चीज को देखो कैसे समझते हैं. वी डिफाइंड दिस लाइन एज लाइन ऑफ इंपैक्ट. ये कौन सा लाइन है? ये वो लाइन है जो कि दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, एंड द वेलोसिटीज will change along this direction. The collision forces will be active or significant along this direction, and along the direction perpendicular to line of impact, we will not have any change of velocity or momentum. Are you getting? ठीक है. तो ये डायग्राम बनाओ और इसको थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग. लिखोगे, लिखो. When an object collides with a surface, when an object collides with a surface, very large force is produced perpendicular to the surface, ठीक है, perpendicular to the contact surfaces भी लिख सकते हो या surface लिखो, perpendicular to the contact surface. That force is normal between the surface and the object. That force is normal between the object and the surface. फिर लिखोगे change in momentum and velocity. Change in momentum and velocity is produced only along the perpendicular direction of surface, ठीक है. फिर लिख लो लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिख लो क्या होता है. देखो, इट इज द लाइन perpendicular to contact surface passing through contact point, ठीक है. मोमेंटम चेंज और जो भी आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ऑल द थिंग्स आर अप्लाइड अलोंग दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है. इसको लिख लो. चेंज ऑफ मोमेंटम, वेलोसिटी, coefficient of restitution calculation. Is used along this direction, ठीक है, और applied along this direction, ठीक है, is applied along this direction.
और एक दूसरा चीज लिख लोगे, velocity and momentum remains unchanged. Velocity and momentum remains unchanged perpendicular to line of impact. यानी कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखो सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग एट एन एंगल फाइव, ठीक है। सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग एट एन एंगल फाइव, मास इज m, वेलोसिटी इज u, ठीक है। सो इट विल हैव one component perpendicular to the surface and other component parallel to surface, ठीक है। So u cos theta is what? Perpendicular to surface. So u perpendicular is u cos theta, ठीक है। And u parallel is u sin theta, ठीक है। Before collision. Now after collision what will happen? After collision, suppose mass is u, velocity is v, and this angle is यहाँ पर थीटा लिख लिया हो, थीटा लिखो यहाँ पर, तो फिर इसको थीटा कर लो, ठीक है, इसको फाई कर लो, ऐसे करो, ठीक है, ओके। दिस इज बिफोर कोलिजन। नाउ आफ्टर कोलिजन क्या होगा बताओ? आफ्टर कोलिजन v परपेंडिकुलर क्या होगा? v परपेंडिकुलर v cos phi and v parallel v sin phi. From the discussion what we did just now, which two quantities are same? This and this will remain same. इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा. So what we can write? We can write u sin theta equal to v sin phi, because along this direction there is no change of velocity. ठीक है? And इस डायरेक्शन का बात करते हैं. If we write along the line of impact, along line of impact क्या हो जाएगा बताओ? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के along हम लोग जानते हैं एक वॉल से स्ट्राइक करता है तो क्या था रिलेशन? V was E into U, याद है? V was E into U, यही था ना? So what can we write? We will write V perpendicular equal to U perpendicular into E, जो भी इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, whatever value is there, ठीक है, वो हम लोग लिखेंगे. So V perpendicular is how much? V cos phi and U perpendicular is U cos phi, ठीक है, into theta into E, ठीक है. So this is suppose equation 1 and this is equation 2. Now if we divide करो या फिर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फाइव इस तरफ है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हम लोग u को कैंसिल करवाना है, v को कैंसिल करवाना है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, ठीक है. तो मल्टीप्लाई 1 with 2 क्या आ जाएगा? u v sin theta cos phi and this side e u v sin phi cos theta. If you solve it, you will get sin theta cos phi, यही है ना, sin theta cos phi and sin phi cos theta. Okay, now can we write it as tan theta equal to tan phi into E, ये लिख सकते हैं, ठीक है. We can write like this. So what this relation is indicating? What this relation is indicating?
if E equal to 1 means elastic collision. In that case, if E equal to 1 then theta equal to 5. ये कहीं देखे हो ये रिलेशन इस टाइप का कहाँ आता है? ऑप्टिक्स में आता है ना. क्या होता है? जो इंसिडेंट एंगल होता है वही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है. ठीक है, मिरर में. तो न्यूटन का जो है, न्यूटन जो है ना, पहले आज से 300-400 साल पहले उसने थ्योरी किया था कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच ओनली हैव इलास्टिक कोलिजन. वो इलास्टिकली कोलाइड करता है मिरर से. तो यही सब के बेसिस पर उसने दिया होगा. ठीक है, ठीक है, इलास्टिकली मिरर से कोलाइड करता है, इस तरह का उसने दिया था. तो हम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग विद द मिरर इलास्टिकली. ठीक है, एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड एट द सेम. अब क्या होगा नेक्स्ट देखते हैं. ये तो एक केस होगा, केस 1. बट नॉर्मली व्हाट डू वी हैव? E is not 1. ठीक है, दूसरा केस लेते हैं, E equal to 0 करके देखते हैं क्या होगा. केस 2, E equal to 0. Then equal to 0 means what? 0. थीटा क्या होगा? थीटा विल बी नहीं, थीटा ये 0 है तो थीटा तो हमारा गिवन एंगल है, निकालना तो फाई है ना. थीटा तो इंसिडेंट एंगल है, थीटा नहीं निकालना है हम लोग को निकालना फाई है. उनको फाई के टर्म्स में लिख देते हैं. फाई हम लोग को फाइंड आउट करना ना, थीटा तो मालूम है, tan थीटा बाय E. ठीक है, ओके. इफ थीटा इज इक्वल टू E equal to 0, then tan phi will be infinite, means phi is 90. Phi is 90. ठीक है, phi is 90 means what? ये एंगल कहाँ तक जाएगा? बढ़ के ऐसे यहाँ आ जाएगा. इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा कोलिजन के बाद? उछलेगा ही नहीं, स्लाइड करता चला जाएगा इसमें. ठीक है, it will start rolling और sliding. किसके साथ वो 90 डिग्री? ये एंगल है ना, ये 90 बनेगा तो ऐसे हो जाएगा. तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ. हाँ, ये तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ ही एंगल बना है. ठीक है, जो नॉर्मल होता है ना लाइट के केस उससे. इज इट क्लियर करण? समझ में आया? ये एंगल जो है वो 90 बनेगा. 90 मींस अगर इनइलास्टिक कोलिजन है ऑब्लिक एंगल पर, ऐसे मान लो थ्रो किया, इनइलास्टिक है तो ऑब्जेक्ट ऐसे गिरेगा और उछलेगा नहीं, वो सीधे आगे स्लाइड करता चला जाएगा और रोल करता चला जाएगा. दैट विल नॉट रिबाउंड. ठीक है, एग्जाम्पल तो प्रैक्टिकली जैसे तुम्हारा ये बॉल होता है, क्रिकेट का जो बॉल होता है, ठीक है, वो देखते हो ऐसे उछलता है, लेकिन उसमें भी बहुत कम होता है जो तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, बहुत थोड़ा हल्का सा उछलता है. और अगर तुम्हारा सरफेस थोड़ा सैंडी टाइप का सरफेस बना हो तो क्या होगा? नहीं उछलता है, वो वहीं पर थोड़ा दूर आगे जाके रुक जाएगा. तो वो सब एग्जांपल है. ओके, नाउ वी विल कंसीडर द केस 3. इफ E is greater than 0 less than 1. तो क्या होगा बताओ? E is greater than 0 and less than 1. ठीक है, तो फाई क्या हो जाएगा? फाई का वैल्यू थीटा से बड़ा हो जाएगा. ठीक है, फाई का वैल्यू थीटा से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखो जब इक्वल है तो दोनों बराबर है और ये मैक्सिमम 90 तक जा रहा है, यानी कि थीटा से बड़ा 90 से छोटा हो जाएगा. ठीक है, सो फाई विल बी ग्रेटर देन थीटा एंड लेस देन 90. ठीक है, तो ऐसे होगा. जो प्रैक्टिकल में होगा ना, ये तुम्हारा इस टाइप से ऐसे कुछ आएगा, ये एंगल हमेशा बड़ा होगा. ठीक है, तो ये होता है प्रैक्टिकली अगर कोलिजन होता है तो ये होगा. ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसा कैसा आता है. ठीक है, एक बार क्वेश्चन पर आते हैं. तो पहला जो इसमें क्वेश्चन होता है, एक तो सिंपल निकालने दे सकता है वेलोसिटी. ठीक है, वो हो गया. इसके अलावे प्रोजेक्टाइल का बात करते हैं. We know if we throw a projectile, we can find the range. We have the initial angle
we have the velocity u. We can find the range. Now, if that projectile collides, तो यहाँ पर का एंगल मालूम होता है कितना होता है? जो प्रोजेक्शन एंगल होता है ये मान लो फाई है, तो यहाँ भी फाई बनता है, तो थीटा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है? You can find that angle. Now, अब क्या होगा after this? After this, if coefficient of resistive diffusion is given, you can find the velocities after collision. The vertical direction velocity will change according to that formula. E. ये formula के हिसाब से vertical direction velocity change करेगा, but horizontal direction velocity will remain unchanged. ठीक है? तो if you have uy and ux, x direction or y direction, so ux will remain unchanged, but uy will decrease. ठीक है? तो next time जो आएगा ना तुम्हारा वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है? because uy has changed. इसी तरह थर्ड में और कम हो जाएगा. तो इस पर क्वेश्चन आते हैं, what will be the range? Maximum height और range दोनों कम होगा. हाँ, दोनों कम हो जाएगा, ठीक है? because the uy जब चेंज होता है तो दोनों कम होता है. मैक्सिमम हाइट तो uy पर ही डिपेंडेंट होता है and range is dependent upon both. ठीक है? so क्या होगा? the range will keep on decreasing and you can find what will be range in second after the first collision, before second collision. ठीक है? and after second collision, third collision, that kind of questions are there. ठीक है? उसमें आता है क्वेश्चन सॉल्व करना. समझ में आया? ओके, तो कर सकते हो. तो क्वेश्चन जो है उसी पर बेस्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 43 अभी करोगे बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट.